गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्यारे बच्चों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन ले रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि सीबीएसई 10th क्लास में प्रैक्टिकल होते हैं और मैथमेटिक्स में इंटरनल असेसमेंट होता है, जिसके अंदर हम लोग एक्टिविटीज़ करते हैं और लैब में परफॉर्म करते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के साथ। लेकिन इस बार कोरोना के कारण स्कूल ज़्यादातर नहीं चले हैं, इसीलिए आप लोगों की ये एक्टिविटीज़ नहीं हो पाई है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को ऑनलाइन वीडियो भेज दूँ ताकि आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स मिल सके और किस तरह से कंप्लीट करना और स्पेशली आपको फाइल कैसे बनानी है उसके बारे में मैं थोड़ा गाइडलाइन करूँगा। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखें और समझें किस तरह से करने हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई डॉक्यूमेंट है, हम लोगों को सबमिट करना है और आपके मार्क्स इसमें मिलेंगे। तो आप लोग इसको ध्यान से समझ करके इसको कंप्लीट कीजिए। तो आपको एक एक्टिविटी फाइल लेनी है। जनरली एक्टिविटी फाइल है वो आपको इस तरह की फाइल होती है, लेकिन अगर आपको ये नहीं मिलती है मार्केट में तो कोई बात नहीं, आप लोग कोई भी ऐसी एक एक्टिविटी फाइल ले लीजिए जिसके साइड में प्लेन पेपर और एक में और एक साइड में लाइन पेपर हो, और उसमें आपको इंडेक्स मिल जाएगा और उस इंडेक्स में आप लिख दीजिएगा और बाकी प्रैक्टिकल कैसे करने हैं ये सब मैं आपको बताऊंगा। तो आप लोग देखिए, मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन और उसके थ्रू आपको समझ आएगा कि आपको किस तरह से करने हैं। ठीक है ना, बड़ी सावधानी से काम करना है और राइटिंग अच्छी लिखनी है और स्केच पेन वगैरह यूज करने हैं और बहुत सारी सावधानी से आपको लर्न करना है। लास्ट में हम लोग एक एक्टिविटी भी आपको करवाएंगे टेस्ट के तौर पे, तो उसमें आपको ये काम आएगी। ठीक है, तो देखिए कौन कौन सी एक्टिविटी है उसका हम लोग देखेंगे। ये मैं आपको व्यू अच्छा दिखा लेता हूँ, फुल स्क्रीन मोड में दिखा देते हैं। तो देखिए ये आपकी एक्टिविटी बहुत सारी है, लेकिन हम लोग सेलेक्टेड एक्टिविटी करेंगे। ठीक है ना, इसमें हमने एक्टिविटीज को कर रखा है। तो ये एक्टिविटी आपके है, पहली है वो हम करेंगे टू सॉल्व द डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन ऑन ग्राफ पेपर एंड these two condition you have to solve with the graph paper. And second activity we have to show, that is the to verify the trigonometric identities. And third we see that to prove that the line drawn parallel to one side of a triangle intersecting the other two sides divide them in the same ratio. Fourth is that to verify that the square of hypotenuse is equal to the sum of square of the other two sides in the right triangle. To show that fifth one, to show that the length of the tangent drawn from external point are equal. So dear student, we have to perform these 5 activities only this year due to very short time. So see in the front page, after that you have see one more index will be there. So you have to write the index. For example, this is written what is the objective aim of the activity, we write as a objective and date of the given and page number and then their sign. So that 5 you have to write here in the index. Now see activity first. With the help of this you can write. See, so similarly your topic no need to write, you have to write directly m. Then this m you show here written in bold, so you also have to write with the sketch pen or glaze paper. And other two line like to solve the different types of the system of equation on graph paper. This is with the help of black ink or you can write blue ink to obtain the condition of consistency of the equation. Or prerequisite knowledge, again heading you have to give with the lighter pen or glider you can use. They are solving a linear equation in one variable. This knowledge you should need. Material required, graph paper, pencil, scale, geometry box that you have to need. Procedure what? That you have to take system of equation. These two system of equation is given, and then as usual numerical method we solve in mathematics. How to draw the graph of the equation? You draw the table, find the value of y in terms of x, and then different table you get, and from that different table, as you know that we have to draw the points on the graph paper, and with the help of scale and pencil you join all these points, you get these two lines like this. So dear student, this graph paper is already given at the last of the activity file, where there is no need to tear that graph. You have to plot that point on that one and draw graph in that case. And the two drawn line are intersect each other at the point, and you see the point of intersection of these two lines at 2 3.
Hence the solution of the system is given equation, you get x equal to 2 and y equal to 3. तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे ग्राफ ड्रॉ करना है, जैसे हम लोग नॉर्मली इक्वेशन में करते हैं उसी तरह से करना है। और जो ये टेबल बनानी है ये आपको व्हाइट पेपर पे बनानी है, जो प्लेन पेपर है उस पर बनानी, और लाइन वाला पे ये लिखना है, ठीक है। इसी तरह से आपको दो सेट और लेने, जैसे ये किया उसी प्रोसेसर से। नाउ चूज अनदर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, ये आपको वापस दो इक्वेशन लेने और इसी इक्वेशन की दो टेबल ड्रॉ करनी दूसरी वालों की, और उसका भी एक ग्राफ ड्रॉ करना। तो आपको ग्राफ ड्रॉ करो, आपको देखोगे कि ग्राफ दोनों है वो आपस में पैरेलल आ रहा है, या ग्राफ है वो एक दूसरे के ऊपर कॉन्सिडेंट करना है। इसी तरह से एक और पेयर लेना है, ये तीसरा 10 नंबर पे, चूज वन मोर पेयर ऑफ इक्वेशन एंड यू सी दैट द लाइन विल बी कॉन्साइड। तो आपको कुल मिला के 3 पेयर लेने इक्वेशन के और 3 ग्राफ ड्रॉ करने, और तीनों ग्राफ से पता चलेगा एक ग्राफ आपका इंटरसेक्टिंग होगा, दूसरा है पैरेलल होगा, और तीसरा इंटरसेक्टिंग। तो इससे आपको डिफरेंट ऑब्जर्वेशन मिल जाएंगे, ठीक है ना। और ऑब्जर्वेशन में क्या क्या मिलेगा, सबसे पहले क्या करोगे आप, ये दे रखा है इंटरसेक्टिंग लाइन का a1/a2 क्या है इक्वेशन में, b1/b c1 c2, कोइंसिडेंट लाइन में क्या है और पैरेलल लाइन में क्या है, ठीक है। तो उससे आपको ये इंपॉर्टेंट चीज मिल जाएगी कि जो लाइन इंटरसेक्ट हो रहा है उनका a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, और कॉन्सिडेंट हो रही उनके तीनों इक्वल है, और जो फर्स्ट टू पार्ट इक्वल, थर्ड नहीं हो लाइन। तो इस तरह से ये आपको एक्टिविटी करनी है, बहुत आसान है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब हम देखते हैं दूसरी एक्टिविटी, दैट इज द ट्रिग्नोमेट्री रिलेटेड। ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ी है, वी हैव टू वेरीफाई द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी आपको वेरीफाई करनी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। प्री रिक्विजिट नॉलेज, कॉन्सेप्ट ऑफ द राइट एंगल। तो यहाँ पर भी वापस ये जो रेड लाइन में लिख रखे हैं ये आपको अच्छी तरह से स्केच पेन या ग्लेजर पेपर से लिखना है, ग्लेज पेन से लिखने हैं। ये मटेरियल रिक्वायर्ड ड्राइंग शीट है, स्केच पेन है, ज्योमेट्री बॉक्स है, ये आपके पास है। प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले आपको राइट ट्राइंगल डिफरेंट लेंथ के ड्रॉ करने और डिफरेंट एंगल के करने। मेजर ई साइड ऑफ ट्राइंगल, अब इसका अलग अलग ग्लेज पेपर से बना के चिपका देना उस पर, और इसकी साइड को आपको मेजर करनी है, ठीक है। जैसे 30 डिग्री 35 का लिया, 40 का लिया और 40 का लिया, डिफरेंट एंगल लिए डिफरेंट साइड के। अब इसमें आप टेबल आराम से भर सकते हो, परपेंडिकुलर कितना है, बेस कितना है, हाइपोटेन्यूज कितना है, एंगल कितना है, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, कॉस थीटा, फिर उनका स्क्वायर करके ऐड करोगे तो सभी टेबल में ट्राइंगल में 1 आएगा। तो इस तरह से आप पाओगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, right? Observation, we observe that in every case we get sin square theta plus cos square theta equal to 1. Clear? So in this way you can also complete this exercise. Second, now third, see similar triangle, as you have already know, to prove that the line drawn perpendicular parallel to one side of a triangle intersecting the other two sides, divide them in the same ratio. So this is very important theorem. Also we know that is basic proportionality theorem, and also we call this theorem as a Thales theorem. So dear student, it is very important how to prove this theorem. So for that, your prerequisite knowledge is given, concept of the parallel lines and concept of the ratio and proportion. These materials, sheet of white paper, geometry box, drawing pins, sketch pens and pair of scissors. You have take white sheet of the paper and draw 3 different white paper से आपको ये 3 ट्राइंगल डिफरेंट साइज के करने, एक्यूट ऑब्ट्यूज, और ये ड्रॉ करने हैं एज शोन इन द फिगर। नेम द ट्राइंगल, इन तीनों ट्राइंगल के हम नाम दे देंगे, ABC, PQR और XYZ. Draw any 2 parallel lines on each of the pen and sketch pens of the paper color as shown in the figure second. तो इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे और पैरेलल लाइन के नाम दे देंगे एज गिवन इन फिगर सेकंड। ये यहाँ पर हम लोग पैरेलल लाइन ही दो ड्रॉ कर रहे हैं। अब इसके बाद में क्या, ये आपको साइड मेजर करनी, मेजर ईच पार्ट एज शोन इन द टेबल। तो आप बहुत स्केल से आराम से ये टेबल का मेजर कर लोगे, AD/DB क्या आ रहा है, EC क्या आ रहा है, PL, और इनके तीनों ट्राइंगल के जो साइड के पार्ट आ रहे हैं उनके मेजर करके रेशियो निकालें। तो आप रेशियो निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, AD अपॉन, जैसे AF आ गया, इक्वल टू आएगा AE अपॉन, यानी ये पहली वाली करेंगे तो ये आ जाएगा, इसका करोगे तो ये आ जाएगा, इसका करोगे, यानी ये रेशियो पार्ट में आपस में इक्वल आ जाएगा। यानी द लाइन विच आर ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल इंटरसेक्टिंग द अदर 2 साइड डिवाइड द सेम रेशियो। तो ये जो लाइन हम पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं ये इनके पार्ट को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, यही हमारा थेल्स थ्योरम है, यही बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है। तो एक्टिविटी में बहुत आसान से आप कर सकते हो। नेक्स्ट एक्टिविटी देखिए, पाइथागोरस थ्योरम है, टू वेरीफाई दैट द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द 2 अदर साइड ऑफ ए राइट ट्राइंगल। तो हाइपोटेन्यूज ये जो आपकी थ्योरम है इसमें राइट ट्राइंगल में आप लोगों ने पहले भी पढ़ी है छोटी क्लासों में, उसको हम लोग प्रूव कर रहे हैं कि किस तरह से ये प्रूव होगी, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल आपको आना चाहिए, एरिया ऑफ ए स्क्वायर,
साइड इंटू साइड होता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ पैरेलल लाइन। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, कार्डबोर्ड चाहिए, ग्लेज पेपर चाहिए, ज्योमेट्री बॉक्स एंड पेयर ऑफ सीजर्स एंड फेविकॉल्स। तो प्रोसीजर इसका क्या है, एक कार्डबोर्ड ऑफ साइड 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर 15 बाई 15 का एक कार्डबोर्ड लीजिए, कट उसमें से आप राइट ट्राइंगल कट कर दीजिए, जिसमें साइड दे रखी है AB3 AC4 एंड BC4 सेंटीमीटर एज इन द फिगर। After that you have to see here different square box you have to find। तो जो साइड है, जैसे मान लो ये BC आपकी 3 सेंटीमीटर की है, तो 3 के 3 इंटू 3 9 होते, तो 9 बॉक्स इधर बनाने, और 4 की है तो इधर 4 इंटू 4 16 बॉक्स बनाने, और इधर 5 इंटू 5 25। तो ये बॉक्स बनाने और इनकी मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। अब इनके बॉक्स को आप काउंट करो, तो इसका जो सम है AB पर और BC पे, उनके स्क्वायर का जो स्क्वायर्स है, नंबर ऑफ स्क्वायर्स है, उन दोनों का ऐड करोगे तो वो हाइपोटेन्यूज के बराबर। तो इस तरह से हम लोग पाएंगे कि स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड। नेक्स्ट एक्टिविटी देखिए, दैट इज द टेंजेंट ऑफ ए सर्कल। तो टेंजेंट ऑफ ए सर्कल भी हम लोगों ने पढ़ा है थ्योरेटिकल क्लास में। तो अब इसमें देखिए आप लोग क्या करोगे, टू शो दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉ फॉर एक्सटर्नल पॉइंट आर। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट थ्योरम ऑफ द सर्कल। सर्कल की बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको भी हम प्रूव करेंगे, बहुत आसानी से प्रूव कर लेंगे। सर्कल एंड वेरियस टर्म रिलेटेड सर्कल, दैट्स यू शुड नो प्रीवियस नॉलेज। एंड मटेरियल रिक्वायर्ड, ड्राइंग शीट आपको चाहिए, ग्लेज पेपर चाहिए, स्केच पेन चाहिए, ज्योमेट्री बॉक्स एंड पेयर ऑफ सीजर और फेवी स्टिक आप लोगों को चाहिए। अब प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना है, टेक ए रेड ग्लेज पेपर एंड ड्रॉ ए सर्कल। आप एक ग्लेज पेपर ले लीजिए, जो भी आपके पास कलर है, जरूरी नहीं रेड है, और उसके ऊपर एक सर्कल ड्रॉ कर दीजिए विद द सेंटर हो, और उसको काट दीजिए विद द हेल्प ऑफ द सीजर्स। देन पेस्ट द सर्कल एज ऑन ग्रीन रेक्टेंगुलर शीट, और उसको हम क्या करेंगे, ग्रीन रेक्टेंगुलर शीट पे पेस्ट कर लेंगे पेपर को। टेक ए पॉइंट P आउटसाइड द सर्कल। अब उस जो ग्रीन शीट थी उसके ऊपर एक पॉइंट P लीजिए आउटसाइड द रेड कलर सर्कल, और उसको क्या करेंगे, रूलर की सहायता से उसको फोल्ड कर लेंगे। सो यू कैन सी एट द इन द फिगर सेकेंड। देन नेम द दिस पॉइंट ऑन द सर्कल एज T। अब वो जहां से सर्कल को फोल्ड करो वो T आया। इसी तरह से सिमिलरली अगेन प्लेस the ruler on point P and move it in such a way that it touches the another point R। अब आपको रूलर को घुमाना है, और सर्कल के ऊपर वाली साइड में पहले लिया था, अब नीचे वाली साइड में आएगा, जैसे आपके आप फिगर 4 में देख रहे हो। नाउ जॉइंट PR, अब इनको P और R को ज्वाइन कर दीजिए। सो P नाउ PT and PR are the two tangent to circle from an external point P। Join the center of the circle and external point P, so you can see fold the green paper at along PT। और अब आपको फाइनली क्या करना, इन दोनों के along PT और PR के along पेपर को फोल्ड कर लेना है, राइट। सो आफ्टर फोल्डिंग यू गेट दिस टाइप ऑफ, नाउ वी फोल्ड द सर्कल along OP। अब आपको क्या करना, आधे सर्कल को फोल्ड कर लेना, तो आप देखोगे कि जो एक दूसरी टेंजेंट है वो पहली वाले पे कोइंसाइड हो जाएगी या सुपर इम्पोज हो जाएगी। तो इससे ही पता चलेगा कि दोनों की लेंथ बराबर है। तो ये आपके एक्टिविटी होगी। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट आपको 5 एक्टिविटी करनी, ज्यादा बहुत बड़ी नहीं है, जो अपने क्लास में पढ़ा है और मैंने समझाया है उसी जैसी एक्टिविटी है, उसमें कोई ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और आप लोग आसानी से। लेकिन आपको इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको बहुत ही ध्यान से करना है और सफाई से करना है, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन एंड हैव ए नाइस डे। हाँ, तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से हमने एक्टिविटी की है। तो आप लोगों को जैसे भी टाइम मिले उसके अनुसार आप कर लीजिए, लेकिन आप इसके बाद में हम लोग और वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड के बताएंगे किस तरह से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की खास तैयारी करनी है। तो इसलिए देखते रहिए। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।